फिर मेरे को इन्फॉर्म करेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एनालॉग मल्टीप्लायर सर्किट। इसमें मूव करते हैं हम लोग एनालॉग मल्टीप्लायर सर्किट। तो एनालॉग मल्टीप्लायर क्या है? जैसे मैं पहले बताया, मल्टीप्लायर इज अ बेसिक सर्किट which is used to multiply two input signal present into the circuit. मल्टीप्लायर का बेसिक ऑपरेशन क्या है? जो भी सिग्नल उसके इनपुट होंगे, बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लायर का क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ द मल्टीप्लायर। ये क्या है? आपका सिंबल है किसका? मल्टीप्लायर का। ठीक है, इस सिंबल में आपको क्या दिख रहा है? x and y, these are the two input, k is the reference. Generally the value of this reference is equal to 10 or it can be written as 1 by v reference. ये कैसे लिखते हैं हम लोग? 1 by v reference, where the reference voltage is equal to 10. हम लोग 10 लेके चलते हैं। So the value of k is equal to 1 by v reference and that is connected to vj. vj is the output terminal of this analog multiplier circuit. ठीक, तो जो भी आपका इनपुट होगा तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? vz is equal to k multiplied by vx into vy. ठीक, सिंपल ऑपरेशन है इसका। जो भी इनपुट है बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जनरेट हो जाएगा क्या? आउटपुट। दैट इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, एज द नेम सजेस्ट द मल्टीप्लायर सर्किट्स आर यूज्ड टू मल्टीप्लाइंग टू अप्लाइड सिग्नल। जो भी टू इनपुट सिग्नल हैं उनको मल्टीप्लाई करने का काम कौन करता है? एनालॉग मल्टीप्लायर सर्किट। These multiplier circuits can be used for phase angle detection, frequency doubling and shifting, and for demonstrating the principle of amplitude modulation and demodulation. So these are the areas where we can use the multiplier circuit. But this is not limited to these applications only. There are huge amount of the application, huge amount of the area where also you can use the multiplier circuit. ठीक, कुछ मल्टीप्लिकेशन मेथड्स भी देखेंगे बाय विच वी कैन मेक इट इजियर टू मल्टीप्लाई टू सिग्नल विच इज अप्लाइड टू द मल्टीप्लायर। ठीक है, वो आगे का पार्ट है। सो व्हाट इज द बेसिक आउटपुट ऑफ दिस मल्टीप्लायर? सो आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड एज Vz। जैसे मैं यहाँ पे बताया, ये क्या? दैट इज द आउटपुट ऑफ द मल्टीप्लायर, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज Vz। सो Vz इज इक्वल टू k, k is the multiplication factor, so k multiplied by Vx into Vy. Actual में ये क्या था? Vz is directly proportional to the multiplication of two input Vx into Vy. So this proportionality constant is represented as k. So k into Vx into Vy. So that is the value of Vz. And what is the value of k? K is equal to 1 by V reference. So Vx Vy divided by V reference. So that is the value of Vz. ठीक, जैसे मैं आपको बताया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V reference? V reference is equal to 10. So the output of the analog multiplier circuit, Vz is equal to Vx into Vy divided by 10. तो दो इनपुट अप्लाई करिए Vx टर्मिनल पे, Vy टर्मिनल पे, उनको मल्टीप्लाई करिए एंड इजीली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक, then the different quadrants of the multiplier. So quadrants are basically divided into 4 types. What are the 4 types of the multiplier? One is 1 quadrant multiplier, 2 quadrant multiplier and 4 quadrant multiplier. कैसे आता है ये? So that is based on the 2 inputs of the multiplier. जैसे मैं पहले हमने डिस्कस किया कि मल्टीप्लायर में 2 इनपुट्स होते हैं। अब इनपुट की वैल्यू क्या होगी? Either the value of that input is positive, either the value of that input is negative, either the value of that input is positive as well as negative. ठीक, तो जिस भी टाइप की वैल्यू है उसको उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट्स में हम लोग रखते हैं। ठीक, इन केस ऑफ 1 quadrant multiplier, so when both the inputs are positive, means the multiplier circuit is in 1 quadrant. ठीक, 1 quadrant हम लोग क्या किस चीज को कहते हैं? In such operation, the polarities of both the input must always be positive. तो जो दोनों इनपुट हैं हमेशा अगर पॉजिटिव है तो that can be taken as that can be put in 1 quadrant multiplier space. ठीक, in case of 2 quadrant multiplier हम लोग किसको बोल रहे हैं? If one input is held positive and other is allowed to swing in both positive as well as negative.
ठीक है। तो टू और अगर आपका एक इनपुट फिक्स है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और जो आपका सेकेंड इनपुट है दैट इज अलाउड टू स्विंग आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन negative direction, or the positive value or negative value, that means the multiplier circuit is in two quadrants. ठीक, मल्टीप्लायर किसमें है? टू क्वाड्रेंट्स में। और फोर क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है? अगर आपके दोनों इनपुट आर फ्री, बोथ द इनपुट्स आर फ्री टू स्विंग इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डायरेक्शन, देन द ऑपरेशन इज इन फोर क्वाड्रेंट्स मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर दोनों इनपुट की वैल्यू क्या है? दैट आर फ्री टू मूव इन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डायरेक्शन, देन द ऑपरेशन इज बिलोंग्स टू फोर क्वाड्रेंट मल्टीप्लायर ऑपरेशन। ठीक, so this is the basic difference in one quadrant multiplier, two quadrant multiplier and four quadrant multiplier. ठीक, I hope that would be clear. बहुत easy है multiplier का। ठीक, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको। दो इनपुट यहाँ पे क्लियर कट है। अगर दोनों इनपुट सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे हमेशा तो वन क्वाड्रेंट में है। अगर एक इनपुट आपका हमेशा पॉजिटिव में रहे बट दूसरा पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, देन दैट इज कॉल्ड एज द टू क्वाड्रेंट मल्टीप्लायर ऑपरेशन। बट अगर दोनों ही आउटपुट आपके पॉजिटिव भी स्विंग कर सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, मतलब दोनों आपके फ्री हैं किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, दैट मींस यू आर ऑपरेटिंग इन फोर क्वाड्रेंट मल्टीप्लायर ऑपरेशन। ठीक, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मल्टीप्लायर, जो कैरेक्टरिस्टिक है मल्टीप्लायर का, दैट इज सेम टू एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अदर सर्किट्स। जो अदर सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेम एप्लीकेबल किसमें है? इन केस ऑफ मल्टीप्लायर ऑल्सो। जैसे आपका क्या है? लीनियरिटी। तो लीनियरिटी क्या है? मैक्सिमम आउटपुट डेविएशन फ्रॉम द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन टू एनी अदर वैल्यू। कितना ज्यादा स्ट्रेट लाइन से डेविएट होता है इनपुट, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज लीनियरिटी। ठीक है, यूजुअली इट इज केप्ट एज प्लस माइनस 10 वोल्ट। कितनी वैल्यू इसकी रखते हैं? प्लस माइनस 10। ठीक, तो कितना आपका आउटपुट लीनियर है इस पर्टिकुलर पोर्शन से, इस लाइन से, उसको हम लोग किससे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लीनियरिटी। ठीक, व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट? तो इनपुट के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना वेरी हो रहा है उस लीनियर लाइन से, वो लीनियरिटी आपका शो करता है। व्हाट इज एक्यूरेसी? सो इट इज द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द एक्चुअल आउटपुट लेवल फ्रॉम द आइडियल वन, दैट इज कॉल्ड एज द एक्यूरेसी। तो जो आपका आइडियल वैल्यू है उससे जो एक्चुअल वैल्यू है कितना डेविएट हो रहा है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द एक्यूरेसी। ठीक, दिस डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? टोटल एरर। डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कितना एरर जनरेट। ठीक, नाउ बैंडविड्थ इज व्हाट? बैंडविड्थ इंडिकेट्स द हाई फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटी ऑफ एन एनालॉग मल्टीप्लायर। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में उसका बिहेवियर क्या है, कितनी वैल्यू है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बैंडविड्थ। जीरो ट्रिम, so this is the ability of the multiplier to set the feed through output voltage to zero। जो आउटपुट वोल्टेज है उसको जीरो पे सेट करना ही क्या कर रहा था? जीरो ट्रिम। क्योंकि आपका हो सकता है जो सर्किट है when the both the inputs are zero but it is giving some other voltage not is equal to zero, so you need to set the output voltage zero when the input is equal to zero, that is called as the zero trim। Now scale factor, it indicates the ability to set the output voltage to its positive or negative maximum which is equal in magnitude, that is called as the scaling factor। तो जब आपका इनपुट पॉजिटिव है आपको आउटपुट भी पॉजिटिव सेट करना है, इनपुट नेगेटिव है आउटपुट भी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पे सेट करना है, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग फैक्टर। मतलब ये एक्चुअल में एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग इक्वेट करते हैं। ठीक, कभी आप देखे होंगे ना वेगिंग मशीन में अगर एक साइड आपका ज्यादा हो जाता है वोल्टेज और आपको वही रखना है, कई बार देखिए दुकान वाले क्या करते हैं कुछ ना कुछ अमाउंट रख देते हैं दूसरे डायरेक्शन में, बोलते हैं इसको इक्वेट करने के लिए, तो आपका क्या है स्केलिंग, उसको इक्वल करने के लिए मैग्नीट्यूड में। एंड लास्ट वन इज फीड थ्रू, so it is the amount of peak to peak voltage with one input grounded। So when the one input is grounded, on that condition how much amount of the peak to peak voltage is generated, that is measured with the help of feed through voltage। So these are the different characteristic of the multiplier। Now the last one is application। So there are huge amount of the application of the multiplier in communication,
कम्युनिकेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज डिटेक्शन, तो देर आर लॉट ऑफ द एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन फील्ड। तो कहीं भी आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, यू कैन यूज द मल्टीप्लायर सर्किट। ऑल्सो यू कैन यूज इट इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। कहाँ पे यूज करेंगे? वेलोसिटी मेजरमेंट, एक्सेलरेशन, power measurement, automatic gain control. Similarly, for voltage control attenuator, for voltage divider, RMS calculation, phase shift detection, frequency converter, frequency doubling, frequency shifting, squaring and square rooting। ये आपके सिलेबस में भी है, स्क्वायरिंग स्क्वायर रूटिंग हम देखेंगे इसको। Used to solve non-linear equation, and also at last used in oscillators to generate waveform, and also used for square wave generation. So these are the some application of the multiplier circuit. Some of these application we will discuss here in our unit. So this is all about today's lecture. Thank you so much.